Hello everyone. Welcome to the Teacher Tube Science online study channel. Today we will discuss a new chapter of class 10th, chapter number 8, that is how do organisms reproduce. So in this lesson we will discuss the things. The content are reproduction, importance of reproduction, and types of reproduction, asexual reproduction types, and sexual reproduction. These are the contents on which we will discuss in this video. Now, first of all, let's have an introduction about the reproduction. Reproduction is an integral feature of all living beings. The process by which a living being produces its own like is called reproduction. अपने जैसे नई जनरेशन को डेवलप करना, अपने समान नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है. Importance of reproduction. Reproduction is important for each species because this is the only way for a living being to continue its lineage. Apart from being important for a particular individual, reproduction is also important for the whole ecosystem. Reproduction helps in maintaining a proper balance among various biotic constituents of the ecosystem. Moreover, reproduction also facilitates evolution because variations come through reproductions over several generations. Yes, रिप्रोडक्शन के थ्रू ही एक कोई भी ऑर्गेनिजम्स है वो अपना अस्तित्व बचाए रखने में कामयाब होती है. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो जस्ट सोच के देखिए कि जो आज हम देख रहे हैं, जो चारों तरफ हम जो देख रहे हैं, क्या वो होता? नहीं होता. Even the plants, the birds, the animals, human beings, these will not exist in the system. This is all happening just because of this, the system of reproduction. इसके अलावा रिप्रोडक्शन से जो भी स्पीसीज हैं वो अपना एक सेवरल जनरेशन्स के थ्रू एक मॉडिफाइंग जनरेशन भी रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि न्यू क्लाइमेटिकल कंडीशंस में एडेप्ट होने के लिए बेस्ट सूटेबल होता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सी द रिप्रोडक्शन हैव टू टाइप्स. द वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द अदर वन इज asexual reproduction. Types of reproduction. Let's have a thorough discussion about the types of reproduction here. So there are two main types of reproduction. These are asexual reproduction and the sexual reproduction. First of all, asexual reproduction. When a single parent is involved and no gamete formation takes place, the method is called asexual reproduction. No meiosis happens during asexual reproduction. So हम पढ़ चुके हैं कि asexual reproduction में जो मियोसिस की जो बात आई है, मियोसिस हम पहले पढ़ चुके हैं. मियोसिस में क्या होता है, जो पेरेंट के जो क्रोमोसोम्स हैं उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं. सो उससे बनते हैं गैमेट्स, और गैमेट्स के फ्यूज़न से बनता है जाइगोट, और उससे न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होता है. सो जाइगोट में दोनों पेरेंट्स से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जॉइन टुगेदर, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम एज पर द पेरेंट्स. और इसलिए ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है. लेकिन एसेक्सुअल प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है. इसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. दैट इज़ वाई वी नीड नॉट टू हैव टू पेरेंट्स, और उनका गैमेट फॉर्मेशन वो भी आवश्यक यहाँ पर नहीं है. गॉट इट? Then it comes sexual reproduction. When two parents are involved and gamete formation takes place, the method is called sexual reproduction. जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और गैमेट फॉर्मेशन होता है, जो रिप्रोडक्शन का ये जो टाइप है इसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
Meiosis happens during gamete formation, which is an important step of sexual reproduction. Yes, meiosis यहाँ पर ज़रूरी है और meiosis के थ्रू ही जो नंबर ऑफ chromosomes हैं वो remains same. For example, in human being we have 46. Then after the gamete formation they left by 23, and here also they are left by 23. Out of these 23 we have 22 plus 1, and this side also we have 22 plus 1 pair of, this is we are talking about pair. Got it? Pair of chromosomes. Then what happens when from this generation these gametes and from these gametes, when the fusion takes place, so number of chromosomes becomes 44 plus 2, then it ultimately comes to the 46. Got it? These two chromosomes belongs to the sexual production, और इन्हीं को कहते हैं हम सेक्सुअल क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, जिनके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे. Got it? Next. Now, the types of asexual reproduction. Asexual reproduction is dividing in fission. Then fission is again divided into two parts, that are binary fission and the multiple fission. Okay? Then it comes vegetative propagation, then budding, then regeneration, fragmentation, and spore formation is also a part of asexual reproduction. So इनके बारे में हम one by one आगे की slides में discuss करेंगे. Here comes first of all fusion. We are discussing about the fusion. So fusion first of all, binary fusion. So two types fusion we have discussed in the last slide, binary fusion and multiple fusion. So binary fusion, let us see. Most of the unicellular animals prefer this method for reproduction. These organisms reproduce by binary fission. देखिए, जो यूनिसेलुलर जो एनिमल्स हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो दैट इज़ मोस्टली टेकन एज बाइनरी फिशन. सो बाइनरी फिशन में होता क्या है, बाई से मीन्स टू, दो. सो दीज ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाई बाइनरी फिशन एस्पेशली व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल. यहाँ ध्यान दीजिए, आप इस वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए. फेवरेबल कंडीशंस जब होती हैं तो ये जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं ये बाइनरी फिशन के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस करते हैं. एडेक्वेट, जैसे कि एडेक्वेट अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल होना चाहिए एंड मॉइस्चर इज अवेलेबल, देन दे विल गो टू फॉर बाइनरी फिशन. द मदर सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर्स. कैसे हो रहा है, अब यहाँ देखिए, ये पेरेंट सेल है, इसको मदर सेल भी बोल सकते हैं. मदर सेल डिवाइड्स इनटू टू सेल्स. देखिए, एंड ईच डॉटर सेल बिगिंस इट्स लाइफ लाइक अ न्यू इंडिविजुअल. और ये जो सेल जो बन रही हैं वो सेल एक नया लाइफ, नया इंडिविजुअल की तरह या नए पेरेंट के थ्रू काम करना शुरू कर देती हैं. द पेरेंट जनरेशन ceases to exist after binary fission. Amoeba is a very good example of organism which reproduces by binary fission. So this is the example of amoeba. तो binary fission के थ्रू ये नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस करता है. Then it comes, और थोड़ा सा इनको अगर हम दिखाएं, सो बाइनरी फिशन में फिशन इनटू टू सेल्स. एक सेल से कितनी सेल बनेंगी, टू सेल्स बनेंगी. यहाँ देखिए, टू डिफरेंट सेल्स बनेंगी. दिस बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन. दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू नोट डाउन. अमीबा एंड पैरामीशियम आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस बाइनरी फिशन. नेक्स्ट इट कम्स द बाइनरी फिशन. ये कुछ माइक्रोस्कोपिक जो पिक्चर्स हैं और ये आप यूट्यूब पर भी इनको और अच्छे तरीके से किस तरह से बाइनरी फिशन हो रहा है, द प्रोसेस बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं. चलिए, नेक्स्ट इट कम्स
मल्टीपल फिशन। देखिए मल्टीपल का मतलब यहाँ पे बाइनरी फिशन का मतलब 2 टुकड़ों में टूटना था। अब मल्टीपल है तो इस मीन्स बहुत सारे टुकड़ों में जो मदर सेल है या फादर सेल पेरेंट सेल है वो यहाँ पे ब्रेक डाउन होती है। सो देखते हैं वापस थोड़ा सा 1 मिनट प्लीज। व्हेन कंडीशंस बिकम अनफेवरेबल, यहाँ नोट करने की बात है कि जब कंडीशंस जो हैं अनफेवरेबल होती हैं, लाइक द फूड इज़ नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज़ लेस, द मॉइस्चर इज़ नॉट अवेलेबल, proper temperature is not suitable for them, these are some unfavorable condition for the organisms. Then this is the preferred mode of reproduction by unicellular organism. Again it comes for the unicellular organisms. We are talking about the unicellular organisms only. Okay, so this binary fission and multiple fission both taking place in unicellular organisms. जब conditions favorable होती हैं they are going for binary fission. If the conditions are non favorable, unfavorable conditions हैं then they are going for the multiple fission. Got it? The organisms develop a thick coating around itself. First क्या करती है जो organism अपने चारों तरफ एक मोटा आवरण क्रिएट कर लेती है, this is called cyst, और इस आवरण को इस कवरिंग को हम बोलते हैं cyst. The cyst helps the organism to tide over the bad phases. और ये cyst जो है ये organism को कैसी भी बुरी से बुरी conditions से बचाव रखने के लिए help करती है. The nucleus divides into several nuclei and each daughter nucleus is surrounded by a membrane. क्या होगा देखिए यहाँ पर सिंगल न्यूक्लियस है, cyst बना लिया इन्होंने, cyst बनाने के बाद जो सेल है, सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना शुरू होता है. सो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और इस टाइप से. और इसके अलावा जो न्यूक्लियस है अपने चारों तरफ एक आवरण भी बना लेता है, एक मेम्ब्रेन बना लेता है. ठीक है. व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, और जब फेवरेबल कंडीशंस वापस लौटती हैं या वापस आती हैं, देन द सिस्ट डिजॉल्व इन द वाटर और ब्रेक्स डाउन. तो क्या होता है, ये जो सिस्ट बनी हुई है, ये सिस्ट चारों तरफ जिसके जो आवरण है ये पानी में डिसोल्व हो जाती है या ब्लास्ट हो जाती है या ब्रेक डाउन हो जाती है, और इसके अंदर जो मल्टीपल डिवाइड जो न्यूक्लियस बने हैं वो रिलीज हो जाते हैं. रिलीजिंग द डॉटर न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई को रिलीज कर देती है. द डॉटर न्यूक्लियाई इन टर्न ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स. प्लाज्मोडियम एंड एंटमीबा अंडरगो cyst stage when they are not in the body of the prime host. ये दूसरी बॉडी में रहती हैं, होस्ट में रहते हैं. ठीक है ना. तो होस्ट में रह रहे हैं, और जब होस्ट में ये नहीं होते हैं, है ना, होस्ट में जब ये नहीं होते हैं, इनको पैरासाइट बोलते हैं. तो होस्ट में जब ये नहीं हैं तो ऐसे में ये इस तरह का रिप्रोडक्शन शो करते हैं. ठीक है. ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. Very interesting. In very brief, if we want to see, then multiple fission, here it is a parent cell. It creates a covering that is called cyst, and the nucleus is divided into many nuclei, and when the favorable condition returns, this outer covering that is called cyst, it's breaking down here. Do you see it? From here it is broken. So multiple fission, तो fission into many cells. ओके. एक सेल जो है बहुत सारी सेल्स में ब्रेक डाउन हो जाती है. टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, ये इंपॉर्टेंट है. अनफेवरेबल कंडीशंस में ये होता है. कुछ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं. प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो कि हमें मलेरिया का कॉजेज है प्लाज्मोडियम. चलिए नेक्स्ट इज बडिंग. The next reproduction method in organism that is called budding. दो ये भी क्या है, asexual reproduction का एक टाइप है. इसमें देखिए yeast is an example of unicellular organism which reproduces by budding. yeast यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है.
Hydra is an example of multicellular organism which reproduces by this method. यहाँ ध्यान देने की बात है, यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है एंड द हाइड्रा इज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. These are the points you need to note down in your notebook. Okay, now budding in the yeast. Yeast में budding की process देखते हैं. A small bud grows at any end of the yeast cell. कोई भी yeast cell है, yeast cell के किसी भी end पर एक small bud यहाँ पे create हो जाती है. Nucleus gets elongated and a part of it protrudes into the bud. होगा क्या, जैसे ये कोई सेल है और सेल को थोड़ा सा कोई यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बडिंग यहाँ पे बनती है और न्यूक्लियस जो है यहाँ एलोंगेटेड हो जाता है और इस तरह से, और फिर यहाँ से ये टूट जाती है ना. द न्यूक्लियस देन डिवाइड्स इनटू टू न्यूक्लियाई. दो न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियाई में टूट जाता है और एक रह जाता है पिछली सेल के साथ, एक नई सेल के साथ चल जाता है. वन ऑफ द न्यूक्लियाई गोज इनटू द बड. The bud grows to certain extent and gets detached from the mother. और होगा क्या, ये बड जो है एक लिमिटेड टाइम तक उसके साथ में अटैच रहेगी और उसके बाद जब ये अपना पूरा शेप एंड साइज कवर कर लेती हैं, देन इट डिटैच फ्रॉम द मदर सेल. नाउ टॉकिंग इन द बडिंग इन हाइड्रा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं. अ बड ग्रोज एनीवेयर ऑन द मेन बॉडी ऑफ हाइड्रा. हाइड्रा की बॉडी के किसी भी जगह पर एक बडिंग यहाँ पर निकल जाती है. द बड ग्रोज टू अ सर्टेन साइज एंड गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मदर हाइड्रा. ये भी ऐसे ही है, ये पूरा बड जो है पूरा शेप बना लेता है हाइड्रा जैसा, और जब ये पूरा अपना शेप बन जाता है तो ये मदर हाइड्रा से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है. दिस डेवलप्स फर्दर टू ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. और इससे क्या होता है कि जो डिटैच हुआ है, जो पार्ट जो डिटैच हुआ है, जो बड अलग हुई है, वो एक नया हाइड्रा बना लेता है और इस प्रकार से जनरेशन जो है कंटिन्यू रहती है. ये देखिए यहाँ पर यीस्ट में बडिंग को शो किया है. ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है. ये देखो यहाँ पे दो थी, इस तरह से ये एक बडिंग यहाँ पे निकल के आई है. गुड इट. ये माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ बडिंग. ना fragmentation, next way of asexual reproduction, that is called fragmentation. Reproduction by fragmentation is seen in filamentous algae. जो filamentous यानी लंबी ऐसी एलगी होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, उन एल्गीज में ये फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन देखा जाता है. जैसे स्पाइरोगायरा, द फिलामेंट ऑफ स्पाइरोगायरा डिवाइड्स इनटू मैनी पीसेस. ये जो फिलामेंट है ये अलग अलग बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है. एक फिलामेंट है, कोई भी टुकड़ों में टूटे, और अलग अलग जो यहाँ का पीस बन रहा है वो किस में डेवलप हो जाता है, एक नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है. यहाँ देखो ये स्पाइरोगायरा का है और ये जो इसका फिलामेंट है यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया. देखिए यहाँ से ब्रेक हो गया, ये ब्रेक होते जा रहे हैं और ये ब्रेक होकर के नया एक ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेते हैं. ठीक है, वेरी सिंपल. बट यू सी हियर रीजेनरेशन. अब यहाँ पर कुछ रीजेनरेशन दिखाई दे रहे हैं. रीजेनरेशन, सम सिंपल ऑर्गेनिजम्स कैन रीजेनरेट a new individual from a part which has been accidentally cut off. ये देखिए इसमें होता क्या है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये कैपेसिटी होती है कि अगर उनके बॉडी का कोई पार्ट किसी भी एक्सीडेंटली या किसी भी कारण से दो पार्ट में कट हो जाता है, जैसे यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया, तो उसका जो कट हुआ जो पार्ट है, जितने भी पार्ट में डिवाइड हुआ है, वो अलग से इंडिविजुअल को डेवलप कर लेता है. ठीक है, सो ऐसी जो विधि है इसको बोलते हैं रीजेनरेशन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. प्लेनेरिया शोज गुड एग्जाम्पल ऑफ रिप्रोडक्शन बाय रीजेनरेशन. ये प्लेनेरिया का एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रखा है. इफ अ प्लेनेरिया इज कट इनटू सेवरल पीसेस, ईच पीस डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. है ना. सो हमने बहुत सी कहानियों में भी ऐसा सुना होगा जिनमें कहा गया कि वो जैसे रक्त बीज है, उसकी ब्लड की
एक जो ड्रॉप है उससे ही नया आदमी बन जाता था, नया राक्षस बन जाता था। सो यहाँ हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ द फंजाई, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड। अब यहाँ पर बात, और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं उनमें जैसे फंजाई है, ब्रायोफाइट्स हैं और टेरिडोफाइट्स जो हैं, उनमें रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशल स्पोर बेयरिंग ऑर्गन्स, और इनमें स्पोर को बेयरिंग करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं और उन्हीं में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, कॉल्ड स्पोरेंजियम, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन करके रखें। व्हेन स्पोर्स मैच्योर द स्पोरेंजियम बर्स्ट ओपन टू रिलीज दैम। जब ये स्पोर्स जो है मैच्योर हो जाते हैं तो जो स्पोरेंजियम मीन्स जो थैली सी जो बनी है उसमें ब्लास्ट हो जाता है, वो बर्स्ट हो जाती है और उसमें से जो स्पोर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। अब जो स्पोर बने हैं वो जो है क्या काम करते हैं, वो न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। देखिए एडवांटेजेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, इसके क्या फ़ायदे हैं। In fact, spores give certain survival benefits to the organisms which reproduce by spores. स्पोर के थ्रू जो जनरेशन, जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनको ये सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। स्पोर्स कैन बी डिसएमिनेटेड थ्रू एयर। इससे क्या होगा कि एयर के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, एंड थ्रू वाटर के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, एंड इवन थ्रू सम अदर कैरियर्स लाइक एनिमल्स, और किसी एनिमल के थ्रू, जो मूविंग एनिमल है उसके यहाँ बॉडी के साथ में अटैच होकर के या उसके साथ में लग कर के भी एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो है ये जो लड़ाई है एक जगह सर्वाइवल की जो प्रॉब्लम आएगी वो नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादा स्पेस मिलेगा, ज़्यादा फूड होगा, तो यहाँ सर्वाइवल प्रॉब्लम कम आएगी। दिस हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू स्प्रेड इट्स प्रेजेंस टू अ वाइडर जोग्राफिकल एरिया। और इससे क्या होगा, वो जो स्पीसीज़ है या जो वो ऑर्गेनिज्म है उसको एक वाइडर प्रेजेंस भी मिलती है, बहुत लंबी दूर तक वो पहुँच सकता है। स्पोर्स कैन ऑल्सो रिमेन डोरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये डोरमेंट पीरियड में भी रह सकते हैं, अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ रही हैं तो बहुत सालों तक ये चुपचाप रहते हैं, कोई इनमें डेवलपमेंट नहीं शो होता है। टिल फेवरेबल कंडीशंस आर फाउंड, जब तक ही फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती हैं। साइंटिस्ट कंसिडर स्पोर्स आर प्रीकर्सर्स ऑफ सीड्स। साइंटिस्ट ने स्पोर्स को एक तरह से सीड का पूर्ववर्ती बताया है। जैसे सीड्स होते हैं, सीड भी बहुत सालों तक रह सकते हैं, ऐसे ही स्पोर्स भी जो हैं बहुत सालों तक डेवलप रह सकते हैं। तो कोई स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पे ब्रेड में दिखा दे रहा है। इस लेसन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले लेसन में हम, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले लेसन में हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपका कोई सजेशन है प्लीज़ कमेंट करें और आपके सजेशंस को ज़रूर एड्रेस किया जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।